Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Miss Rusana. Today I will teach you chapter 3 from chemistry books, and the topic is atomic structure. This chapter we have already started. My today lecture is from the continue from the previous lecture. Atom is the smallest particle of matter. In this chapter we learn the different theories about the atoms. The Dalton gave the atomic theory in 1809, and he gave the five postulates. He gave the five postulates about the atom. According to him, Dalton's theory assumed that atoms of elements are indivisible and that no particles smaller than atoms existed. But as the time passed, the new experimental facts led to the modification and extension of Dalton's atomic theory. Atom is complex organization composed of even smaller particles called subatomic particles. The fundamental particles, these are electron, proton and neutron. The electron is discovered by the 1897 by J.J. Thomson. For this he used the glass tube and fitted with the two metal electrodes connected to the heavy voltage source and a vacuum pump. This is the glass discharge tube in which जो है gases are evacuated by the vacuum pump. And he gave the for this experiment he gave the properties of cathode rays, which I have told you. Now, when electrons were discovered, the Goldstein thought that another particles are be present, positive charge, because the electrons are the negative charges. Proton are discovered by him by the same experiment. The properties, and he gave the properties of positive rays, that is proton. Discovery of neutron in 1932, the English physician James Chadwick discovered the third type of fundamental particles, the atomic structure, through artificial radioactivity. Now we will learn about the radioactivity. What is the radioactivity? The first conclusive evidence that atoms are complex rather than indivisible, as started in the atomic theory, came with the discovery of radioactivity by Henry Becquerel, a French physician, in 1896. जो है पहले जो है डाल्टन थ्योरी के मुताबिक एटम जो था वो इंडिवाइजिबल था और उसके वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, जिसके लिए उसने कहा कि एक एलिमेंट के तमाम जो है एटम जो होते हैं उनके साइज स्ट्रक्चर सेम होता है. कंपाउंड में जब दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं. और इसके अलावा उसने कहा कि जब केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही पैदा होता है, दोबारा क्रिएटेड होता है और उसमें रिएक्शन अनचेंज रहता है. इसके बाद फर्दर जो डिस्कवरीज हुई उसके जरिए साबित किया गया कि एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इसके बाद जो है थर्ड पार्टिकल जो है वो रेडियो एक्टिविटी के जरिए साबित किया. रेडियो एक्टिविटी जो है what is the radioactivity? Radioactivity is the spontaneous disintegration of nucleus of an atom in which indivisible radiation are emitted from the nucleus of atoms. The substances which emit such kind of radiation are known as radioactivity. जो एलिमेंट जिनका
न्यूक्लियस जो होता है वो ज्यादा होता है, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, यानी जिनका न्यूक्लियस हैवी होता है। जिस तरह यूरेनियम और रेडियम जो है वो जो है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, यानी न्यूक्लियस में उसके इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन 92 मौजूद होते हैं, और जिसका एटॉमिक नंबर 238 है। रेडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 88 है। तो जो हैवी एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं वो खुद ब खुद जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो है रोशनी जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसे हम जो है रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। अंदर जो है इसको जो इसका एक्सपेरिमेंट जो है फिर नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी जो 3 टाइप्स की ऑफ रेज मालूम की गई। द ब्रिटिश फिजिकल एनएस रदरफोर्ड इन 1902 determined the nature of radioactive rays by the following experiment and showed that it is composed of the 3 types of rays। उसके लिए जो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? A sample of radioactivity substance was placed लेड ब्लॉक। यहाँ उसने जो है जिस तरह एक हाई जो एटॉमिक नंबर की जो था मैं उसने सैंपल लिया, और जिस तरह रेडियम या वो जो है यूरेनियम इसने यूज किया। सैंपल ऑफ रेडिएटिव सब्सटेंस वाज प्लेस्ड इन अ लेड ब्लॉक बिटवीन द 2 अपोजिट जो 2 अपोजिट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट थे, और इसके बाद इसे इसी तरह बैटरी से जो है और उसके साथ उसमें बैटरी कनेक्ट की गई थी। द रेडिएशन वर resolved into 3 components. One component was deflected towards the negative plates, proving that it carried a positive charge. These were named as alpha rays. The second composed deflected towards the positive plate, showing that it carried a negative charge. These were named beta rays. The third type carried no charge, no mass, and were not deflected in the electric field. These were named as alpha rays. उसने क्या किया कि उसमें एक जो है वो ब्लॉक लिया था, लेड ब्लॉक लिया था, और इसमें जो है इसने जो है उसने हाई जो है उसकी जो रेडियो एक्टिव जो मास था वो एलिमेंट था उसको लिया उसने, और ये 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्ट की थी। जब रेज इसमें से निकालना शुरू हो गए, हमेशा आपको पता है जो नेगेटिव रेज होती है वो पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, जो पॉजिटिव रेज होती हैं वो नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो जो नेगेटिव की तरफ रेज गई तो उसने कहा कि ये पॉजिटिव रेज है, उसका नाम उसने अल्फा रेज रखा, और वो रेज जो पॉजिटिव की तरफ बढ़ी तो उसने इसका नाम जो है बीटा रेज रखा, क्योंकि उसे था कि ये नेगेटिव चार्ज जो सेंटर की चार्ज थी वो बीच में गई, वो किसी तरफ नहीं गई, उसका नाम उसने गामा रेज रखा। नाउ रदरफोर्ड का हम फर्दर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 carried out series of experiment. He passed a beam of alpha particle through a very thin gold metal foil. He found that the most of the alpha particles passed through it without any deflection. However, some of them deflected large angles and very few of them bounced back. उसने देखिए फॉइल ली और उसमें से जब उसने रेस पास की अल्फा रेस तो उसने देखा कि जो थी सारी जो थी मोस्ट जो थी वो पास हो गई, लेकिन उसने देखा कि सेंटर में से जो है कुछ रेस जो थी वो वापस बाउंस बैक हुई। से उसने अंदाजा लगाया कि एटम के सेंटर में कोई चीज ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से वो रेस जो थी पास नहीं हो सकी, वापस हो गई। और फ्रॉम द above observation, Rutherford proposed that the atom consists of a very small positively charged nucleus in which the most of the mass of the atom is concentrated. The rest of the volume is empty space around the nucleus. अब उसने कहा कि उसमें जो है एटम के जो ज्यादातर स्पेस जो है वो कैसा है, खाली है, लेकिन इसके सेंटर में कुछ मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल एन एटम
कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। जो सेंटर पार्ट था उसे उसने कहा कि वो न्यूक्लियस है। हियर इज द मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है और बाकी का एम्प्टी पार्ट है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो है मूव कर रहे हैं। और इसमें इसके जो है मुख्तलिफ उसके अकॉर्डिंग शेल्स मालूम किए कि इसमें जो है शेल्स उसने मालूम किए कि वो जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये वेफर्स जो शेल्स होते हैं या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एग्जिस्ट करने की अलग अलग वो नंबर्स होते हैं। फर्स्ट जो ये फर्स्ट शेल जो है वो के, एल, एम और एन है। के शेल में लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, एल में 8 और उसके बाद जो है 18 जो है एम शेल में और एन शेल में जो है वो 32 है। लेकिन मिनिमम एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम और एन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। The weakness or defects of Rutherford atomic model. Number 1, according to the classical physics, since the electron is revolving around the nucleus consisting, it should lose energy and it ultimately falls into the nucleus. Number 2, if the revolving elements emit energy continuously, then there would be a continuous spectrum, but in contrast we get line spectrum from the atom of elements. इसके मुताबिक जो है अगर क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो एनर्जी ज़ाहिर वो करता है, लीव करता है। तो उसने कहा कि अगर वो मुस्तफी करते रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चलेंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो ये इसकी वीकनेस थी जिसे हम मजीद उसको बेहतर किया थ्योरी को, वो नेल बोर्स एटॉमिक मॉडल है। आफ्टर प्लांक एंड आइंस्टाइन डिस्कवर नेल बोर Danish physician in 1913 offered the electrical explanation of the offline spectra. The important assumptions for the atomic structure are given below. Number 1, Neil Bohr adopted Planck's idea that energies are quantized. He proposed that the electrons in atoms move only in certain allowed energy levels, energy states. Also, an electron in an allowed energy state will not radiate energy continuously and therefore will not fall in the nucleus. इसमें जो है नेल बोर ने इलेक्ट्रॉन शेल की थ्योरी पेश करी। नंबर 2 कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट करते हैं लिमिटेड, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं इलेक्ट्रॉन्स करते और वो मुख्तलिफ उसमें शेल्स में चले जाते हैं। नंबर 2 दैट द एटम्स रेडिएशन एनर्जी एज अ लाइट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप from higher energy level to allow energy level. The quantity of energy radiated in a discharge quantity called quanta. A quantum of energy is directly proportional to the frequency of the radiation. यहाँ डेल्टा एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, where A is the Planck constant और V is the frequency of the radiation. थोड़ा करीब लो ताकि इसके स्टार्ट कर दिया। और इनकी थ्योरी के बाद जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो मालूम किए गए, उससे अंदाजा लगाया गया एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस वजह से मुख्तलिफ। Why the atoms of one element differ from the atomic atoms of the another element. For example, how does an element atoms of carbon differ from the atoms of nitrogen? All the atoms can be identified by the number of proton they contain. The atomic number, for example, the number of carbon is 6, then that means the carbon atom has 6 proton and 6 electron.
in it. The atomic number for example, atom number of carbon is 6. That means the carbon atom has 6 proton and 6 electron in it. The atomic the number of nitrogen is 7. It means that nitrogen atom has 7 proton and 7 electron in it. What is the number of proton? Number of proton is the atomic number. जिस तरह ही बताया एटॉमिक नंबर किसकी इज इक्वल टू को जो हम Z से शो करते हैं और माइनस कर दें नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर with on the hard side of the chemical symbol, example is C and nitrogen. वो जो एटॉमिक जो एटम जो है उनको सिंबल से शो करते हैं और सबसे पहले जो है वो जो मालूम किए गए कि वो जो एटॉमिक नंबर जो है वो उसके जरिए कार्बन का ही मालूम किया गया कि और उससे नहीं बताया कि ऑल इस एटॉमिक नंबर के जरिए क्या डिफाइन किया कि ऑल द एटम्स कैन बी आइडेंटिफाइड by the number of proton they contain. No two elements have the same number of the number of proton in the nucleus of an atom is called the atomic number. जो है न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल नंबर होते हैं. टोटल नंबर ऑफ जो है सिर्फ हम प्रोटॉन को क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ हम जो और प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं. इन दोनों की वजह से ही जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, बैलेंस रहते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में नहीं गिर पाते हैं. अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है मास नंबर. एटॉमिक नंबर को जो है हम Z से शो करते हैं. एटॉमिक नंबर क्या है? द न्यूक्लियर ऑफ द एटम कंटेन बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सेप्ट द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है और उसका एटॉमिक नंबर इसीलिए 1 होता है. एटॉमिक मास भी उसका 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है. विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन. द टोटल number of proton and neutron in the nucleus of an atom is called the mass number and denoted by A. What is mass number? Mass number is the sum of proton and neutron. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद मिला के जो है वो मास नंबर होता है. और हाइड्रोजन का में जो न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है. फॉर एग्जांपल द सोडियम atomic number is 11 and the mass number is 23. It indicates that the sodium has 11 proton and 12 neutron. The mass number of is really subscribed on the left hand side of the chemical symbol. एग्जाम्पल है सोडियम. सोडियम का देखें जो है अगर हम शो करेंगे तो क्या है, ऊपर हमने 23 लिखा, नीचे 11. 11 का मतलब एटॉमिक नंबर इज 11 एंड 23 मीन्स द एटॉमिक मास इज 23. द मास नंबर ए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर ए इज इक्वल किसके बराबर होगा, Z प्लस एन. Z शो किया है हमने उससे एटॉमिक नंबर से और एन जो है वो एटॉमिक न्यूट्रॉन के नंबर है. एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज A माइनस Z. यहाँ पे ये जो है प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनको जो हमने से शो किया है. न्यूट्रॉन जो अब इसके बाद देखिए ये जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह मालूम करेंगे, A माइनस Z. अब हमें टोटल नंबर कितनी हो गया इसमें, टोटल नंबर में से अगर हम उसके हम प्रोटॉन के नंबर माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन के नंबर मिल जाएंगे. यानी टोटल नंबर हमारे पास कितना है, एटॉमिक नंबर हमने शो किया 23 और उसमें जो है 23 में से अगर हम
इसको जो है प्रोटॉन के नंबर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा।